کانفرنس ہے اس میں آپ سب لوگ تشریف لائیں. اور یہ پریس کانفرنس بیسیکلی ایک تو جو سروائیور ہے ان کے جو کاؤنسلز ہیں ان کے جو لائرز ہیں ان کے بہاف پہ, اور میں کیونکہ جو ایس آئی ٹی جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی سول سوسائٹی کی طرف سے مجھے اس میں نمائندے کے طور پہ بلایا گیا, تو میں اس میں انوالو ہوں. اور عورت مارچ جو یہاں اسلام آباد کے اندر ایک فیمنسٹ کولیکٹیو ہے, ان کے بہاف پہ ہم نے یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کو کال کیا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ اس کیس میں جس طرح سے انوالو تھے اس میں ایسے کچھ حقائق ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. سب سے جو کی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت شاکڈ ہیں کہ جب یہ لوگ پکڑے گئے, جو کہ واقعی ہی پکڑے گئے, کیونکہ جو سروائیور ہے, کیونکہ ویسے تو ابھی ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح سے بھی پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی, کانسٹنٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ ایشو سامنے آ رہے تھے, آئیڈینٹی اس کا ڈسکلوز ہوا اس کے حوالے سے, جس طرح میڈیا میں رپورٹنگ ہو رہی تھی اس میں سروائیور کا نام اور اس کے ایڈریس سب کچھ چل رہا تھا بہت. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر لیول پہ, ہر انسٹیٹیوشنل لیول پہ وائلیشن تھی. ایون جو میڈیکل وغیرہ اس کا ہوا وہ بھی پراپر طریقے سے, مطلب ایویڈنس اتنی اسٹرانگ تھی کہ ڈی این اے وغیرہ تو ہوا, لیکن اس میں باقی جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں وہ بھی اس طرح سے مکمل طور پہ نہیں کی گئی. تو ہم مسلسل پولیس کے ساتھ میں ایز اے ممبر ان ایشوز کو اٹھا رہی تھی. تو پہلی 2 میٹنگس میں تو مجھے بلایا گیا, اور اس کے بعد ایس آئی ٹی کی جو دوبارہ میٹنگس ہوئی تھی اس میں مجھے نہیں بلایا جا رہا تھا, لیکن ہم نے کیونکہ سروائیور نے ایمان مزاری کو انگیج کر لیا تھا ایز اے لائر, تو ہمارا ایکسیس جو تھا ان سائڈ, مطلب جو ہم انفارمیشن ہم جا رہے تھے مل رہے تھے اور ساری انفارمیشن ہمارے پاس تھی. ہمارا جو مین کنسرن ہے, کیونکہ جب یہ پولیس ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, جب پولیس نے لوگوں کو گرفتار کر لیا تو ظاہر ہے کہ سروائیور نے جا کے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور سروائیور نے پوری اپنی تسلی کی, مطلب جو وہ چیزیں پوچھ سکتی تھی وہ اس نے پوچھی, کیا بات اس وقت ہوئی تھی, اس نے کیا بات کی, ان کا کیا جواب تھا, اس کے کپڑے کہاں تھے, انہوں نے کپڑے کہاں پھینکے, مطلب ایک چیز اس سروائیور نے اس سے کنفرم کی, اور وہ مور دین مطلب 100% شی واز شیور کہ وہ لوگ وہی تھے. اور انہوں نے پھر کنفیس بھی کیا, اور پھر وہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے ہارڈ کو سمجھے کہ کرمنلز تھے. انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً انہوں نے 50 کے قریب پچھلے 3 سالوں سے وہ اس طرح کے کرائمز کمٹ کر رہے ہیں, 50 کے قریب انہوں نے ریپ کیا ہے اراؤنڈ ان اسلام آباد, F9 پارک, G9 مطلب G9 میں اور اس ایریاز میں. اور وہ پولیس کے پاس ان کا ایک کرمنل ریکارڈ بھی نکلا جس میں ایک جہاں پہ انہوں نے رابری کی تھی اس میں انہوں نے ایک مرڈر کیس میں بھی وہ انوالو تھے, ہارڈ کور کرمنلز تھے. ہم لوگ سے وی ور ہیپی کہ بھائی پولیس نے چلے لوگوں کو پکڑ لیا ہے, اور وی ور شاک کہ نیکسٹ ڈے جو اخبار میں جو خبر چھپی کہ جی وہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور ان کو مار دیا گیا ہے. پہلا ہمارا یہ تھا کہ پولیس نے یہ دیکھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی پولیس اور سٹیزن کا بہت ڈسٹرسٹ ہے, تو ہمارا پہلا ریئیکشن تھا کہ پولیس نے یہ دیکھ کے چھوڑ دیا ہوگا ان کو. تو ہم نے امیڈیٹلی یہ کہا کہ وہ سروائیور جائیں, اور پولیس نے کہا کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز کی شناخت کرائی جائے, جو کہ اس نے کی. اور ہمارا جو مین پرپز ہے آج کا, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک کلچر پورے پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جو کلچر بن رہا ہے اس کو ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کو, پولیس اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں, کہ پاکستان کی ہم لوگ تھک چکے ہیں, ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں, ہمارے پاس اب کوئی صبر نہیں رہا کہ آپ اس طرح کی وائلیشن, ایک جوڈیشل پروسیس ہے, ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں چاہے دہشت گرد ہے, چاہے کوئی طالبان ہے, کوئی کتنا ہارڈ کور کرمنل ہے, اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اس کو ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے اس کا اسٹیبلش کیا جائے, اس کا جو ہمارے قانون میں سزائیں ہیں. تو پرائمریلی اس کا مقصد آج کی پریس کانفرنس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ جو حقائق ہیں
اسلام آباد پولیس نے جس طرح سے اس کیس کو ہینڈل کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم ریفارم, کیونکہ ہم سب نے بہت کلوزلی اس کیس کو فالو کیا ہے, اور ہم تفصیل سے ابھی بان نظاری آپ کو تفصیل سے بتا دیں گی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, جس پہ ہم نے آئی جی پولیس کو بھی لکھا تھا. آئی تھنک آئی ہینڈ اوور ٹو ہر سو شی کین گیو ڈیٹیلس کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کہ وائلیشنز ہو رہی ہیں ان ٹرمز آف انویسٹیگیشن. السلام علیکم جی, آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا, میں اس بات سے پہلے تو شروع کروں گی کہ یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے قانون کے تحت, پاکستان پینل کوڈ کے تحت کسی بھی ریپ یا گینگ ریپ سروائیور یا وکٹم کی شناخت ڈسکلوز کرنا ایک جرم ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی تمام دوستوں سے جو ادھر موجود ہیں کہ آئیڈینٹی پر بالکل کوئی ڈسکلوجر نہیں ہو سکتا اس ملک کے قانون کے تحت. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ سب کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں, کور کرتے ہیں ایشوز کو. 2022 سے لے کر 2023 اس سال جو ریپ کے کیسز ہوئے ہیں اسلام آباد میں, جن علاقوں میں تھوڑی سی آپ کو بس آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے کیسز ہیں جس میں پولیس ناکام ہوئی ہے, جو پھر اس کیس میں بھی سوال یہ ریز کرتی ہے کہ پولیس اس کیس میں جب ملزمان کو 15 تاریخ کو گرفتار کر لیا تھا, ان کی شناخت ہو گئی تھی, تو ایسا کیا چیز ہے جو پولیس چھپانے کی کوشش کر رہی ہے انہیں قتل کر کے, ایکسٹرا جوڈیشلی ایکزیکیوٹ کر کے. 4 جنوری 2023 کا واقعہ ہے گینگ ریپ کا. 15 دسمبر 2022 کا واقعہ ہے جہاں پولیس نے ایک لڑکی کے ساتھ یہ ریپ کیا. 5 سپٹمبر 2022 تھانہ کرال کا FIR نمبر 1613 2022 ہے گینگ ریپ کا. 18 اگست 2022 FIR نمبر 376 2022 سیکریٹریٹ تھانہ اسلام آباد, جہاں ایک عورت کا 12 گھنٹوں میں 14 دفعہ ریپ ہوا تھا. یہ سارے ایسے کیسز ہیں شاید جن کا کوئی تعلق ہو, ہمیں نہیں پتا, صرف یہ ساری چیزیں مل کر اس ایکسٹرا جوڈیشل ایکزیکیوشن کے ساتھ یہ دکھاتی ہیں کہ پولیس یا تو نااہل ہے, یا تو وہ ڈیلیبریٹلی نہیں ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتی, یا وہ انکمپیٹنٹ ہے, نیگلیجنٹ ہے. لیکن پولیس سے ہم یہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. اب میں آؤں گی جی کہ جس طرح چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں میں ترتیب سے چلوں گی تاکہ آپ کو مکمل ہم انفارمیشن دے سکیں. یہ جو واقعہ تھا یہ 2/2/2023 کو ہوا, 8:20 شام کو. کال اسلام آباد پولیس کو گئی 9:20 شام کو. ایک لاپس جو پہلے ہی سٹیج پہ ہو گیا تھا کہ جب پولیس کو کال گئی تھی اور وہ F9 پارک میں آئے تھے, انہوں نے گیٹس F9 پارک کے سیل نہیں کیے تھے. اگر وہ کسی معجزے سے ان میں اتنی صلاحیت ہوتی اور ایفیشنسی ہوتی کہ وہ سیل کر بھی دیتے, آپ کو پتا ہے کہ ادھر جو جنگلیں ہیں, جو فینسز ہیں F9 پارک میں, وہ بہت سی جگہوں پر ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے کہ ایڈمن کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں, انہوں نے ان چیزوں کو ریکٹیفائی نہیں کیا. جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے اور اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم بنائی گئی ہے, جو سروائیور تھی اسے اس SIT کی نوٹیفیکیشن تک نہیں دی گئی, اسے یہ تک نہیں بتایا گیا کہ اس SIT میں کون سے افسران شامل ہیں. اور جو ابھی آپ نے فرزانہ باری صاحبہ سے سنا ہے کہ انہیں بھی SIT میں شامل کر کر ایز سول سوسائٹی ممبر جب انہوں نے سوالات پیش شروع کرنے کیے کہ دیکھیں یہ لاپسز آ رہے ہیں, انہیں بھی SIT سے الگ کر دیا گیا. اب جب سے سروائیور نے مجھ سے سبرینا سے کانٹیکٹ کیا اور ہمیں آفیشلی انگیج کیا, پولیس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ سروائیور کو وکلا سے الگ کرے, آئسولیٹ کرے. ہم نے ایک کانفیڈینشیل خط لکھا تھا IG صاحب کو 11/2/2023. ہم نے 12 لیپسز کی تفصیل دی تھی, 12 لیپسز جو اس کیس میں ہوئے تھے. جنرلی میں آپ کو بتا دوں یا تو وہ ان کی ایک ڈیلیبریٹ نیگلیجنس سے تھے, یا وہ بیسک جو ریپ کیسز میں پروسیجر ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا, ان کی وائلیشنز ہوئی تھی انیشل سٹیجز پر. اور کانسٹنٹلی جو سروائیور تھی ان کے خلاف وکٹم بلیمنگ کی گئی, انہیں ہر سطح پر ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے بالکل جو سروائیور سے لائن آف کوشچننگ کی وہ قانون کے مطابق پروہیبٹڈ ہے.
اب یہ جو ہم نے خط 11/2 کو لکھا، آئی جی صاحب نے یہ مناسب نہیں سمجھا، آج تک انہوں نے ہمیں یہ جواب نہیں دیا کہ جی ہم اس پر دیکھ رہے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہو یا ہمیں جواب اس خط کا دیا ہو۔ جو ایس ایس پی ماریہ صاحبہ ہیں جو اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم کو ہیڈ کر رہی تھی، میں ادھر ایک اسپیسیفکلی یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایک ٹوکنزم ہوتی ہے نا کہ آپ ایک عورت کو بٹھا دیں اور آپ کہیں کہ وہ عورت سمجھ جائے گی، ٹریننگ میں مسئلہ ہے، آپ کی پولیس خواتین کی ٹریننگ میں بھی مسئلہ ہے۔ تو جو ایس ایس پی ماریہ ہے جو ایس آئی ٹی کو ہیڈ کری تھی، جب بھی میں ان سے کیس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ میری کالز کا جواب نہیں دیتی تھی، میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتی تھی، جب میں میٹنگ ارینج کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ ٹائم فکس کر کے کینسل کر دیتی تھی لاسٹ منٹ، اور پھر جب میری ایک میٹنگ ان سے 16/2 کو ہونی تھی 2 بجے، میں ان کے دفتر گئی اور وہ ادھر موجود نہیں تھی۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹس کو 13/2 کو ایک کمپلینٹ بھیجی۔ ہم نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ جی تمام کوریج اس کیس کے حوالے سے ریسٹور کی جائے۔ ہم نے کہا صرف جو وکٹم کی آئیڈینٹی ہے اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے ایز پر دا لا، لیکن کوریج ریسٹور کی جائے۔ اب 15/2 کو، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس پر میں بہت ایمفیسس کروں گی اور میں اس پر آپ سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ایشوز آپ نے ریز کرنے ہیں۔ 15/2 کو تقریباً 4:30 بجے دوپہر کو مجھے کال آتی ہے میری کلائنٹ سے کہ پولیس نے گرفتاریاں کر لی ہیں۔ انہوں نے مجھے کال کیا ہے کہ ہم آپ کو I9 CIA پولیس اسٹیشن لے کر جانا چاہتے ہیں ان کی شناخت کے لیے۔ وہ ادھر گئی، جیسے فرزانہ بھائی صاحبہ نے آپ کو بتایا، انہوں نے دونوں ملزمان کی شناخت پازیٹیولی کی۔ ایک پیس آف انفارمیشن جو اسے یاد تھی اس نے کورابریٹ کی ادھر 100% سرٹنٹی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی 2 ملزمان تھے اس چیز میں انوالو۔ اب ادھر میں اور میری کالیگ سبینہ پہنچے پولیس اسٹیشن میں، ادھر باقاعدہ ہماری انٹری ہوئی ہے، میں نے اپنا CNIC دیا ادھر انٹری کے لیے 4:55 PM، ٹھیک ہے۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، میں نے اپنی کلائنٹ سے تفصیل میں بات کی ہے کہ کیا ایگزیکٹلی ہوا، انہوں نے کیا ادھر کنفیشنز کی، کس کس حوالے سے انفارمیشن دی، اور پھر ہم پولیس اسٹیشن سے نکل گئے۔ پولیس اسٹیشن سے نکلنے کے بعد میں آپ کو ایک میسج دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے ایس ایس پی ماریہ صاحبہ کو بھیجا تھا 5:19 پر دوپہر کے۔ یہ وہ میسج ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں، میں نے یہ ان سے کہا تھا کہ اب یہ ملزمان آپ کی تحویل میں ہیں، آپ کی کسٹڈی میں ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ جلد سے جلد ان کے میڈیکل اور DNA کروائے جائیں گے۔ انہوں نے رسپانس مجھے دیا تھمز اپ، ٹھیک ہے، انہوں نے میرے میسج کو اکنالج کیا۔ جی پھر ہم آتے ہیں کہ اس بات پہ کہ اگر 15/2 کو گرفتاریاں ہو گئی تھی، 4:30 بجے سے یہ ان کی کسٹڈی میں تھے، تو پولیس نے بہت عجیب ایک ریاکشن اپنائی۔ انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا کہ جی ہم نے ملزمان تک ہم پہنچ گئے ہیں، پھر انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے قریب ہیں، گرفتاری کے قریب ہیں، اور پھر انہوں نے یہ فیک انکاؤنٹر کی سٹوری جاری کی جو بالکل 100% جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ یہ ان کی کسٹڈی میں تھے، ان کی کسٹڈی میں ہی مارے گئے تھے۔ تو سب سے جو اہم سوال ہے، اور ادھر میں اپنی بات کا اختتام کروں گی، سب سے اہم جو سوال ہے کہ دیکھیں اگر پولیس کی کسٹڈی میں، اور یہ ہمیں کنفرمیشن ہے کہ یہ پولیس کی کسٹڈی میں لوگ تھے دونوں ملزمان، تو ایسی کیا بات ہے جو پولیس چھپانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو انسٹیڈ کہ وہ ٹرائل میں جائیں، اور ٹرائل میں وہ بہت سی باتیں کرتے کہ ہم نے تو پہلے یہ جرائم کیے ہوئے ہیں، کہاں کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جب ان سے یہ پوچھا گیا جب وہ کسٹڈی میں تھے کہ آپ کو پولیس سے ڈر نہیں لگا، انہوں نے واضح جواب دیا نہیں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ بہت ضروری اور اہم نکتے ہیں کہ دیکھیں ہم پولیس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ کہ آپ نے جو سروائیور ہے اس سے رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس تو آپ نے چھین لیا ہے، آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، آپ نے جھوٹے انکاؤنٹر کی پوری سٹوری کنکاکٹ کی ہے۔ لیکن میں آئی جی صاحب سے مخاطب ہو کر 2 باتیں خصوصاً کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ آئی جی صاحب ہم آپ سے جواب مانگنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے ہائی پروفائل کیس میں آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کے سینکشن کے بغیر اس طرح کا انکاؤنٹر سٹوری نہیں بن سکتی تھی، تو آئی جی صاحب آپ خود جواب دیں ہیں۔ اور دوسری بات میں آئی جی صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ آئی جی صاحب اگر اس سروائیور کو ایک بھی بار اس کے سر پہ ہلا، اس سے کوئی بھی نقصان ہوا،
तो ये इस्लामाबाद पुलिस, IG साहब, SIT की हेड मारिया साहिबा, इन तमाम अफसरात की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबरीना बस थोड़ी सी इस पर बात करें और फिर हम सवालात आपसे ले लेंगे। ये बुक थोड़ी सी साइड अस्सलाम वालेकुम आप सबका। आप आगे कर लो, माइक अपने प्लीज अस्सलाम वालेकुम आप सबका। सबसे पहले तो याद रहे कि हम इस वक्त पाकिस्तान के कैपिटल में मौजूद हैं। ये सब सारा वाक़या पाकिस्तान के कैपिटल में हुआ। और दूसरी बात ये कि बहैसियत एक औरत, एक शहरी, ये हमारी प्रोटेक्शन और सबसे ज़्यादा सवाल निशान इस चीज़ पे उठता है कि हम अपने ही दारुल-हुकूमत में महफूज नहीं हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास हमारा प्रोसीजरल लॉ मौजूद है, हमारे कवानीन मौजूद हैं जो कि पुलिस को जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए उन्होंने वही फॉलो नहीं किया और कानून अपने ही हाथ में ले लिया। ये उनकी नाअहली और उनकी नाकामी पे बहुत ये एक सवालिया निशान है। और मैं सबसे अहम बात ये करना चाहूँगी कि हमें इस सब से ये एक सवाल उठता है कि हम एक जंगल में मौजूद हैं जहाँ पे एक जंगल का कानून भी बल्कि इससे बेहतर होगा। और मिस ईमान ने और डॉक्टर बारी साहिबा ने फैक्ट से और लूप होल से आप सबको आगाह किया है। आप ये बताइए कि जब आपकी हम सारे सवाल लेंगे प्लीज वन बाय वन। हम इधर से शुरू कर लेते हैं वन बाय वन। जी आपने जब मुलाकात की, हेलो, सबसे पहले हमारी डिमांड्स क्या है? यहाँ पे सिविल सोसाइटी, औरत मार्च के लोग इन्वॉल्व हैं, फेमिनिस्ट इन्वॉल्व हैं, लॉयर्स हैं और जो सिर्फ लॉयर नहीं है वो राइट एक्टिविस्ट भी हैं। ठीक है, हमारी जो डिमांड्स हैं, जो नंबर 1 ये है कि इस केस के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो इंस्टीट्यूट की जाए। नंबर 2, पुलिस के अंदर से जाहिर है कि जो भी FIR जिस तरह से लीक होती हैं, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, उसका भी फिक्स करें रिस्पॉन्सिबिलिटी। IG पुलिस से हमारा ये डिमांड है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए विद इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है इंट्रा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की जाए। नंबर 3, हमने जो ये ऑब्जर्व किया है कि जिस तरह से जिन पुलिस ऑफिशियल को खवातीन वुमेन पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जिस तरह के वो सवाल पूछ रही थी जो कि इंतहाई इनअप्रोप्रिएट और टोटली उनका कोई इस चीज़ से ताल्लुक नहीं था। प्रॉपर जो है पुलिस जो है वो इनकी ट्रेनिंग दी जाए कि जो सेक्शुअल वायलेंस के केसेस हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं, उसमें आपने क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या उसके एथिकली आपके क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, उसको आपने कैसे फॉलो करना है। एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट कि ये पुलिस हमें बार बार कहती है कि जी FIR जो है ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पेमरा में भी जिन जिन चैनल्स ने हम उन सब चैनल्स को जो है वो नोटिस भेजेंगे जो जिन्होंने FIR में जो है आइडेंटिटी, एड्रेस, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेमरा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट देन एंड देयर इन चीज़ों को क्यों इनके ऊपर क्यों नोटिस नहीं लेते। एक वो भी मतलब देयर आर सो मेनी बैटल ग्राउंड्स जो अब जो है जिसे आप सब लोग की हमें सपोर्ट चाहिए होगी। और सबसे आखिर में जब पुलिस ये कहती है कि ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चला जाता है, इसके लिए पार्लियामेंट को से हमें लॉबी करनी होगी। यहाँ पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बैठे हुए, तारा भी है पीछे, फौजिया हमारे जो बैठे हुए, हमें सबको मिलके अपनी पार्लियामेंट से इसके अंदर कुछ प्रोसीजरल चेंजेस करवानी पड़ेगी कि कोई भी जो FIR करती है
जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में उसमें आप आइडेंटिटी जो है उसको डॉक्यूमेंट उसके ऊपर नहीं करेंगे और इसके लिए चाहे उनको लॉ करना है या उनको कोई अमेंडमेंट करनी है वो करना होगा। ये हमारी डिमांड्स हैं क्योंकि हम सिस्टम की को करेक्ट इसका जो करेक्टिव एस्पेक्ट है और ये चीज़ें हम कहते रहते हैं लेकिन क्योंकि हम सब इस वक्त डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। वैसे तो आपको याद होगा मैं कोहिस्तान केस में भी इन्वॉल्व थी और वहाँ पे भी जो जुल्म हुआ 7 साल के बाद 7 साल वो केस लड़ा और फिर ये साबित हुआ जब पहले कहा कि ये लड़कियां वो नहीं हैं और 7 साल के बाद फिर ये पूरे सिस्टम में ये माना गया कि वाकई मैं दुरुस्त कह रही थी और आपकी जो वो दूसरे आपकी पार्लियामेंटेरियन जो थी वो बुशरा कौर और आपकी जो उसकी वो थी क्या नाम है समाधि की जो जज थी वो उनकी रिपोर्ट जो है वो गलत थी और 7 साल के बाद उन लोगों को सजाएं हुई। तो अब ये सिस्टम है इसकी सिस्टम को करेक्ट भी हमने करना है। हमने इस हाईलाइट जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कब से कर रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है कि इवन इस्लामाबाद की पुलिस के अंदर भी हमने देखा कि प्रैक्टिस में हर तरह के लैप्सेस हो मैम बारी आप ये बता दें थोड़ा सा आप मेंबर थी एसआईयू की जी जब आप गए तो क्या मुलजमान ने आपके सामने कन्फेस किया? नंबर 2 जो उन्होंने 50 वारदातों के बाद मुतल्लिक बताया वो भी क्या आपके सामने हुआ कि पुलिस ने आपको बताया? दूसरा कल स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में आईडी इस्लामाबाद ने गुमराह किया एक किस्म का पार्लियामेंट को कि वो हमारी कस्टडी में नहीं थे। ये ऑन दी रिकॉर्ड है कि उन्होंने क्या हमारी वो कस्टडी में नहीं थे। तो आप क्या समझती हैं कि इसके ऊपर भी आप मूव करेंगे कि उन्होंने पार्लियामेंट को भी कल गुमराह जी मेरा ख्याल है कि इसमें एक तो ये मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से कोयटा में थी जब इनको गिरफ्तार किया गया और जब ये जो सर्वाइवर उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए गई तो इमान हजारी उनके साथ थे, ठीक है। और इनको अगर मैं नाम से कहती कि वही इस पे आपको बताए क्योंकि ऐसा शुरू की मीटिंग्स में मैंने कहा कि 2 मीटिंग्स में I was involved. After that I knew कि मीटिंग्स हो रही हैं और मुझे इनवाइट नहीं किया जा रहा है और फिर हमने एंगेज फिर ज़ाहिर है कि जब लॉयर्स एंगेज हो गए तो फिर वो पुलिस वाले हमें ये नहीं कह सकते थे नहीं वो ये मतलब ये नहीं कह सकते थे कि अब आप इस केस से बिल्कुल मतलब हमारा जो एक ओवरसाइट था सिविल सोसाइटी का जिसमें शुरू में उन्होंने इन्वॉल्व किया लेकिन जब हम इश्यूज उठा रहे थे तो उन्होंने बुलाना बंद कर दिया लेकिन जब लॉयर और बोर्ड आ गई तो फिर वो ये नहीं कर सकते तो ठीक है मैडम ये सवाल का जवाब तो लेने दें। वो पुलिस के पास मौजूद थे ये जो 2 मुल्ज़िमान थे जी मैं आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा देखिए जहाँ तक बात है कि मुल्ज़िमान की जब शनाख्त हुई थी तो मैं और सबरीना पुलिस स्टेशन गए थे और हमने हर चीज़ अपने क्लाइंट से कंफर्म की थी, हर डिटेल कंफर्म की थी और ये 100% मैं आपको श्योरिटी से बात कर रही हूँ कि जो 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए थे 15 फरवरी को वो पुलिस की कस्टडी में थे। CIA पुलिस स्टेशन I9 में मौजूद थे। बेशक आप CCTV कैमरास उधर के निकाल लें, हम भी नजर आएंगे, हमारी क्लाइंट भी नजर आएंगी और मुजरिम भी नजर आएंगे। आपने देखा उनको आपकी मुलाकात हुई ईमान आपकी मुलाकात हुई नहीं सॉरी अपना सवाल रिपीट करें आप बताएं साफियों से सवाल ले लें आप जो मैंने बताया जी देखें जब मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ सबको सवाल का जो है मैम इम्पोर्टेंट यार बात सुनो ना सब अपनी बारी बारी का इंतजार कीजिए आप आपने इंटरव्यू करने के लिए ना सारे सवाल ना करें इंटरव्यू कर लीजिएगा बाद प्लीज मैं बस ये आंसर दे दूं जी। जब 15/2 को गिरफ्तारी हुई थी तो मेरी क्लाइंट ने मुझे कॉल की थी 4:30 बजे, ठीक है। पुलिस उसे उस वक्त लेकर चली गई थी I9 पुलिस स्टेशन। मैं और सबरीना उधर पहुंचे 4:55 PM पोस्ट आइडेंटिफिकेशन। तो जो आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन मिली है वो डायरेक्टली क्लाइंट से मिली है जी। अच्छा ईमान ये बताएं कि आप समझते हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जिसको सेफ सिटी कहा जाता है
और जहाँ पे हज़ारों कैमरास लगे हुए हैं, इस शहर में वफाकी वज़ीर दाखिला के नॉलेज और उनकी इजाज़त के बगैर यूँ 2 मुसलमान को मावरा अदालत कत्ल किया जा सकता है? और क्या आप वज़ीर दाखिला के या वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा करती हैं? देखिए, इस्तीफे के मुतालबा की बात नहीं है, बात सिस्टेमिक चेंज की है, ठीक है। और बात सिंपल सी है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिविल गवर्नमेंट नहीं ले सकते कि जी ये जो इस्लामाबाद का रेडियस है उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, एक्स्ट्रा जुडिशल एक्सिक्यूशंस नहीं होंगी, अगर आप बहैसियत इंटीरियर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकते, तो फिर डेफिनेटली आपकी अपनी कॉम्पिटेंस पे कि कैन यू होल्ड दिस ऑफिस, ये सवाल उठता है। मैडम, मेरा सवाल ये है कि ये कंफर्म हो गया आपने बताया के मुताबिक कि वो मुल्ज़मान थे, उन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया, ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। हमारा मुल्क कोई आइडियल सोसाइटी नहीं है। मैं माजरत से कहूँगा कि आप जैसे मुअज़्ज़िज़ वकला साहबान अगली 2-4 पेशों में उन जालिमों को छुड़ा कर ले जाते हैं, ठीक है। अब अगर वो मारे गए हैं तो आप क्या उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं? ऐसे रिक्वेस्ट को ना मारा जाए। जवाब इसलिए दूंगी, देखें, क्योंकि आप जो अंडरलाइन आपका पॉइंट है ना निज़ाम के हवाले से कि ये निज़ाम ख़राब है, उससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा जी कि ट्रायल्स में टाइम लगता है, वकील कोई होते हैं जो बिक जाते हैं। हम ये चीज़ें इधर डिनाई करने नहीं आए, हम सिर्फ 2 बातें इधर कहने आए हैं। एक कि पुलिस की कस्टडी में ये लोग थे और उन्होंने इन्हें मर्डर किया, ये कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। और दूसरी हम बात इधर कहने आए कि देखिए इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल एक्सिक्यूशन की बहैसियत सिविल सोसाइटी, बहैसियत वकील, बहैसियत इंसान हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये कोई कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि आप खुद जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बने। ये बताइएगा कि जब ये वाक़या हुआ है, मतलब जो क्लाइंट थी उन्होंने पहचान लिया, उनको शनाख्त हो गई, क्या पुलिस ने उनको जो आपकी क्लाइंट थी उनको पैगाम दिया, या जब ये वाक़या हो चुका उसके बाद बुला के कुछ बात की उस पुलिस ने? आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं कि जब इनकाउंटर हुआ, जी जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद मेरी क्लाइंट गई थी पिम्स अस्पताल डेड बॉडीज़ की शनाख्त करने के लिए, और उससे पहले जब 15/2 को भी उन्होंने शनाख्त की थी। तो ये 2 दफ़ा शनाख्त हुई है और पूरे होशो हवास में ये हुई है शनाख्त, हर तफसील से, हर डिटेल से ये शनाख्त हुई है। लेकिन ईमान, क्या पुलिस के पास जब डेड बॉडीज की शनाख्त करने गई आपकी क्लाइंट, तो क्या वहाँ पर पुलिस ने उन्होंने कुछ पुलिस से पूछा कि क्या आपने इनको मार दिया, ये तो कस्टडी में थे, कोई बात हुई इस बारे में? लेकिन क्लाइंट भी ऑब्वियसली वो भी काफ़ी ब्राइट, इंटेलिजेंट वर्किंग खातून है, और जो कि ज़ाहिर है आप देखें कि उनकी जो रेजिलियंस और उनकी जो एजेंसी थी कि उन्होंने इस सिस्टम को समझते हुए भी कहा कि उन्होंने रिपोर्ट किया, जबकि इसी पार्क में शायद 10-20 पहले से भी रेप हो चुकी हैं और उन औरतों ने हिम्मत नहीं की होगी कि वो इसको जो है इसको रिपोर्ट करें। तो वो ये नहीं चाहती थी, वो भी चाहती हैं कि जुडिशल जो प्रोसेस है वो भी इसके हक में थी कि वो होना चाहिए, और ये जो आज की प्रेस हम कॉन्फ्रेंस करें ये भी उनकी कंसेंट से ही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पुलिस वालों से मैम पूछा, उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि जो आपने लोग मर्डर किए जिनको तो शनाख्त के लिए ले गए थे आप, मुझे इस बारे में उन्होंने कोई बात की वहाँ से पुलिस वालों ने उनसे? देखिए, इस पर सवाल कल रात को मैंने पूछा था मिसबा साहिबा से जो SIT में है, ठीक है। उन्होंने क्योंकि 12 कांटेक्ट करने की कोशिश किया, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो वो हमसे बात नहीं कर रही थी, अब जब लोगों को मार दिया तो वो बात करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आपने क्यों मारा, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि जो क्लाइंट है उनको नहीं ये मैम ये बताइएगा कि आप एक तरफ कह रही हैं कि सर्वाइवर का नाम नहीं आना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी को छुपाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान के अंदर हजारों ऐसे केसेस इससे पहले भी हुए हैं जिसमें मुल्ज़िमान के नाम, उनके एड्रेस, उनकी शनाख्त सारी सामने लाई गई, तब आप लोग क्यों नहीं बोले? मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि हम इधर बैठ के उन लोगों की राइट्स प्रोटेक्ट करें, हम ये कह रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशल एक्सिक्यूशन नहीं होनी थी, इससे मजीद आप हमसे क्या चाह रहे हैं वो मुझे इस सवाल की मंतक नहीं समझ हमने यही बात की थी SSP मारिया साहिबा से, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 तारीख को 5:19 पर मैंने उनकी मेडिकल की डिमांड की थी SSP मारिया साहिबा से।
अभी तक हमें नहीं पता, बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है कि शायद पिम्स पर आफ्टर द एक्ट ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सिक्यूशन उनका शायद कोई डीएनए करवाया गया, वी डोंट नो। फरजाना माही, आपने कहा कि मैंने कोहिस्तान स्कैंडल को भी मैंने हाईलाइट किया और उस कोहिस्तान स्कैंडल का 7-8 साल बाद जो है सजाए मौत का फैसला हुआ, लेकिन आपके इल्म में ये भी है कि उस सजाए मौत से कबल कोहिस्तान के 4 और जो लोग थे असल वो भी मार दिए गए। क्या ये बेहतर नहीं है कि आपको ईमान की जो क्लाइंट है उनको ये 1 हफ्ते के अंदर ही इंसाफ मिल गया और फारग हो गए? मैडम इसके साथ ये कि वो जीवन का निशान एक सेकंड देखिए, यही बदकिस्मती है और इसलिए एक सेकंड प्लीज जवाब देन आई कम टू यू। देखिए, यही बदकिस्मती है और हम सब लोगों का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह भी यही है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे जो रियासती इदारे जिन्होंने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिनको एक कानून के मुताबिक चलना है, वो नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि वैसे तो हम लोगों को भी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी उठा लेते हैं, उनकी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो जाती हैं। हम इस एक कल्चर को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि हमारी क्लाइंट को ये दुरुस्त है, अगर आप पूछें, इसीलिए पाकिस्तान में आप देखेंगे कि एक डिवाइडेड ओपिनियन है, क्योंकि पुलिस के अंदर भी एक ऐसा माइंड सेटअप बन रहा है कि वो कहते हैं जी हम इतनी मुश्किलों से जो है दहशतगर्द पकड़ते हैं, मुजरिम पकड़ते हैं, अदालतें उनको छोड़ देती हैं। ये पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर भी मैं समझती हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस के अंदर भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं। आपको याद होगा वो कराची में वो जो पुलिस ऑफिसर थे असलम, क्या नाम था उनका? चौधरी असलम, याद होगा, उन्होंने, उनका भी तरीका यही था, वो मुजरिम पकड़ता था और उसको एनकाउंटर करके मार देता जी। तो इसी प्रोसेस में फिर आपको चौधरी असलम भी मिल जाएगा और राव इनवार भी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस में, क्योंकि हम राइट एक्टिविस्ट हम सोचें कि अच्छा इस लड़की को क्योंकि उसके मुजरिम उसने पहचान लिए, वो मारे गए, तो चले जी ऑल इज गुड एंड हम अपने घरों में बैठ जाएं। क्योंकि हम इस मुल्क के सिटीजन हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक निज़ाम हो, एक तरीकाकार हो और लोगों को जो है एक, और तमाम अदारे जो हैं वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो रहते हुए काम करें। और डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि इसमें ये पुलिस के साथ साथ जुडिशरी के ऊपर भी ये है कि अभी भी आप देखें नूर मुकद्दम का केस को आज दूसरा साल चल रहा है, नहीं होता, लोग थक जाते हैं। हमारे जो खासतौर पे जेंडर बेस जो वायरस के सर्वाइवर्स होते हैं वो थक जाते हैं, साल उनको धक्के खाने पड़ते हैं, वहाँ भी उनसे इसी किस्म की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसके बाद लोगों को लालच होता है, उनको धमकाया डराया जाता है और लोग पीछे हट जाते हैं। ये सब हमारे सिस्टम के मसले मसाइल हैं, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप जो है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है वो किलिंग का सिलसिला शुरू करें। हम पुलिस के इस कल्चर को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और वही मैंने कहा कि हम दोबारा ये बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो फौरी तौर पे इंस्टीट्यूट की जाए एंड वी वांट के जो दे शुड फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दोस ऑफिशियल्स हु आर इन्वॉल्वड इन दिस क्राइम। जो पुलिस अफसरान के नाम लेके जो पुलिस अफसरान इन्वॉल्व हैं उनके नाम जब ये हैपनिंग हुई, ये इंसिडेंट सामने आया, तो हमने बहुत कोशिश की कि कहीं हमें ऐसा किसी का मौक़िफ़ मिल जाए। जैसा कि आपने बताया कि आपका नाम उस टीम में शामिल था जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही, फिर बाद में आपका नाम निकाल दिया गया। मैडम तब क्यों नहीं मीडिया को एंगेज किया गया? मैम जस्ट प्लीज लेट मी स्पीक। तब क्यों नहीं मीडिया को एंगेज किया गया? हम लोग तक इबारत हम देख रहे थे, चलिए बिल्कुल सामने नहीं आना चाहती थी, शी इज राइट, उनका बनता भी नहीं था। मैम प्लीज मैम तब कोई भी मीडिया के सामने नहीं आया और जबकि पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल एक कत्ल है अगर हम इसको कानून के मुताबिक बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अब आप कह रहे हैं कि इसको कत्ल कर दिया, अब आप लोग सामने आए। मैडम मेरा क्वेश्चन मुकम्मल होने दीजिए। और ये जो पहला इनकाउंटर नहीं है, इससे पहले भी पुलिस ने बहुत सारे इनकाउंटर किए हैं और आप यकीन करें मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और मैं लास्ट 6 ईयर से, मैम जस्ट प्लीज, मैं क्राइम भी कवर कर रही हूँ। नहीं मेरा सवाल छोटा है, जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है उसमें जो पुलिस की जानिब से तस्वीरें जारी की जाती हैं, मुल्ज़मान की शक्ल देख के तरस आता है, ठीक है, तब जरूरत महसूस होती है। अब मैं एक बाहसियत आम इंसान बात करूँगी, नॉट रिपोर्टर, तब दिल करता है कि मैं अपनी रिपोर्टिंग छोड़ दूँ। एक आम इंसान की हैसियत से रियासत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो कि इनको डिटेक्टिव में किसने मजबूर किया और अब ये इनकाउंटर में मारे गए, उनके भाई की नोट ब्लॉक कर रहे होते हैं, कहीं पे एनजीओ वक्त नजर नहीं आता। अभी ये एफएन का इशू हुआ है,
पर अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो मतलब समझ नहीं आई इस बात की कि मकसद क्या है। देखिए, एक तो ये है कि जो DIG ऑपरेशन थे उस वक्त सुहेल चट्टा साहब ना मुझे राइटिंग में इन राइटिंग ना उन्होंने मुझे कुछ नोटिफाई किया कि आप इसकी मेंबर हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी का ओवरसाइट हो और हम वी फील दैट इफ यू उस वक्त हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, आई वाज राइट इन द प्रोटेस्ट। वहीं मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा आप इसमें बहुत आपको एंगेज करना चाहते हैं, सर फाइन आई कम। उसके बाद मैं वहाँ गई, उसके बाद उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया जो पूरी SIT की जो टीम थी, ठीक है, सबके साथ। वहीं मेरी सर्वाइवर से मुलाकात हुई, वहीं पे फिर अलग पहले मैंने जाके उससे बातचीत वगैरह की। उसके बाद फिर एक दो मीटिंग और मीटिंग्स में वो मैंने खुद जब वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई वो जो DIG ऑपरेशन थे और मारिया को दिया गया, तो फिर मैंने मारिया को कॉल किया, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि सर्वाइवर की कुछ कंसर्न्स थे उस वक्त, ठीक है। शुरू में क्योंकि हमारे पास लॉयर वगैरह नहीं था। Then I realized that I can't handle on my own all that issue. So I advised her to engage a lawyer. Lawyers on board आ गए, ठीक है। और उस मीटिंग के बाद there are quite few meetings which was happening. मुझे पता चला कि मीटिंग्स होती हैं, उन्होंने मुझे उसमें नहीं बुलाया, तो मैंने SSP मारिया से कहा कि मुझे मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो शी सेड कि अब IG पुलिस ने वो आ गए हैं और वो खुद मीटिंग्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी किसी और को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका बैकग्राउंड ये था। दूसरा ये था कि हम पुलिस के साथ हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर रहे थे, हम पॉइंट आउट भी कर रहे थे, लेकिन हमारा ये पूरी कोशिश थी कि पुलिस जो है वो मुजरिमों तक पहुँचे। और वो हमें कह रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे कि हम अभी हमें ये पता चल गया CCTV फुटेज में हमें वो बंदे उन्होंने पहचान लिए, वो हमें बता रहे थे। वी आर नॉट सपोज्ड टू डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन। आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हमने किसी मीडिया को आज मैं आपको बता रही हूँ कि आई वाज अ मेंबर ऑफ SIT। इवन मेरे अपने जो कॉमरेड्स हैं, मेरे अपने जो उनको भी नहीं पता था कि आई एम पार्ट ऑफ ओनली नाउ माई ग्रुप इन औरत मार्च का जो ग्रुप है, ओनली दे नो, उसका भी जो कोर ग्रुप है उसको पता है कि वी वर वर्किंग ऑन दैट। तो देखिए ये एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हम नहीं कर रहे कि हमें कोई किसी को यहाँ पे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनको कोई लिंक चाहिए या उनका कोई और कोई उनका एजेंडा है। हमारा ये एजेंडा है कि इस मुल्क के अंदर जो रियासत खुद इतना बड़ा वायलेटर बनती जा रही है, इसका कुछ करें। और इस्लामाबाद के सिटीजन्स के लिए ये कॉल है कि आप लोग इस तरह का ये केस हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर 100% इज नॉट अ लॉट ऑफ डाउट कि वो पुलिस की कस्टडी में वो लोग मारे गए। तो ये हम सब के लिए कलेक्टिव कॉल है कि हम इस सिस्टम करेक्शन की तरफ आए। और एक बात, क्योंकि आपने मीडिया की बात की, आपको याद होगा कि पेमना ने जब कवरेज सारी बैन कर दी थी, मैंने अभी जिक्र किया था कि 13/2 को हमने कंप्लेंट उन्हें भेजी थी कि प्लीज़ आप कवरेज रिस्टोर करें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आई होप दैट मैडम ये बताइएगा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, मुद्दा मौजूद है, उनकी आवाज आ रही है ना आपकी आ रही है, वो बात कर रहे हैं। चलिए करने एक सेकंड प्लीज, अगर खामोशी हमें सवाल आएगी। मैम इसकी न्यूज़ भी सबसे पहले जी इन्होंने ब्रेक की थी कि मुसलमान को गिरफ्तार किया कि अब ये जो जाली पुलिस मुकाबले की असल कहानी सामने आई है, इसके खिलाफ आप IG के खिलाफ कोई केस करेंगे या जो मुतलका अफसरान इसमें मुलव्वस हैं के खिलाफ भी केस करने जाएंगे? जी इंशाल्लाह हम इस पर काम कर रहे हैं। हम अभी सारे जो अपने ऑप्शंस हैं उन्हें हम देख रहे हैं कि क्या क्या एक्शन हम ले सकते हैं, और जब हम ये एक्शन लेंगे तो हम पब्लिक को डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। मैडम ये बताइएगा, आप यहाँ पे मौजूद हैं, मुतासरा खातून आपके साथ पहली तो बात ये रही है, उसको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है? सर एक मैं आपको इधर ही रोकूंगी, इधर इस बात पे रोकूंगी सिर्फ कि देखें ये बहुत शायद मीडिया की रेटिंग्स वगैरह के लिए आप लोग चाहते हैं कि वो सामने आए। ये कानून कहता है कि उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट जो है ये इन इटसेल्फ आप गैर कानूनी सी बात कर रहे हैं कि जी उन्हें पेश करें। मैं उनकी वकील हूँ, सबरीना उनकी वकील है, हमारे पास उनका वकालतनामा है, हम ऑथराइज्ड है उनकी बिहाफ पर बात करें। क्या वो अभी तक कोर्ट में पेश हुई है? कोर्ट में तो केस ही नहीं गया, चलान नहीं चल हुआ। कोर्ट में सर अगर कोर्ट में केस होता, सर अगर कोर्ट में केस होता, आप अजीब बात करें सर, अगर कोर्ट में कोई चलान होता, केस होता तो जरूरी जाहिर सी बात है कि बंदा पेश होता अदालत में कानूनी प्रोसीडिंग्स के लिए।